Those are live images from the residence of the Lieutenant Governor. Rekha Gupta has reached there, beaming quite naturally. She's flanked by the central observers. She's got Jay Panda, who led the BJP campaign there. You can see the BJP MPs like Bansuri Swaraj. We see Virendra Sachdev, the Delhi BJP chief. So some of the MPs are there. Ravi Shankar Prasad can be seen there. They're all there now waiting for VK Saxena to come in and for Rekha Gupta to present her credentials, and the swearing in will happen then noon tomorrow. So the stage is set. The BJP delegation reaching the residence of the Lieutenant Governor, and they will be presenting their credentials in just a short while from now to VK Saxena. The big question, of course, is what to expect from the new CM and from the new Delhi BJP government. You've seen, Rajat, build up to this decision. Now, why do you think Rekha Gupta has been chosen as the new chief minister, and what should viewers expect from her tenure? So if you look at the body language of Atishi Marlena, that will give you the clues around which BJP would have thought through. And I think they believed that with Rekha Gupta ji as the new chief minister, it is going to completely blunt the attack which is going to come from the Aam Aadmi Party. It very well knows that Aam Aadmi Party still has the strength of 2022 MLAs, and in all likelihood Atishi Marlena ji would be the leader of opposition. So they want to blunt out that attack. And secondly, Arvind Kejriwal would find it very hard to go on charging against a lady chief minister that way. Typically what he's been doing with the other leaders of Delhi BJP. So I think from a multiple perspective, if you see, she has a clean slate. She comes in with strong organizational credentials, has no cases against her, as a very, very confident woman leader. Let me tell you that most people who would have interacted with her knows one thing about her, that she is a phenomenal leader that way, who brings in that level of confidence that a leader who has to take everybody along, she tends to fill that important gap along, and she remains a soft face where she can address the urban audience and she can relate with the rural audience also. So it's that delicate mix of what you expect in a leader. She tends to have all of that, and that goes with certain amount of hindsight benefit as well. But okay, just a moment before now, Congress leader Alka Lamba has put out an image. We'll have that out for you on the screen, where she and Rekha Gupta are being sworn in a DUSU position at the same time. So I have Alka Lamba with me on the phone right now. Alka ji, ये तस्वीर मैंने देखा काफी तेजी से वायरल हो रही है. आप और रेखा गुप्ता खुद आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, लेकिन एक साथ भी थे. बताएं हमारे दर्शकों को क्या आप जानती हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर से. राहुल जी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस हुआ, मैं 30 साल पीछे उन यादों में चली गई. तस्वीरें देखी जो एल्बम हमारी थी, तब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं होते थे. हमारी एल्बम होती थी, मैंने खुद निकाला उसको, और ये तस्वीर बहुत यादगार है. जब हम शपथ ले रहे हैं, मैं अध्यक्ष पद पे शपथ ले रही हूँ, और वो जो है जनरल सेक्रेटरी महासचिव पद जीती थी एबीवीपी से. हमने 10 में शपथ ली, और 1 साल हम एक ही कैबिन, एक ही ऑफिस शेयर किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में. और यादगार पल रहे. दिल्ली के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी थे, और देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी. दोनों में रहता था. आइडियोलॉजिकली ठीक है, हमारी फाइट हमेशा रही. वो एबीवीपी आरएसएस के लोगों को लाकर लेक्चर कराती थी, और मैं गांधीयन आइडियोलॉजी पर लेक्चर होते थे, और हमारा आइडियोलॉजिकल क्लैश रहता था. बट मुद्दों पर बात आती थी तो रेखा का एक खासियत थी कि हम दोनों विमेन हैं, और विमेन स्पेशल चलवाना है, विमेन हॉस्टल्स चाहिए, विमेन के लिए कैंपस सेफ होना चाहिए. तो मदनलाल खुराना जी के पास मिलकर जाती थी. हम पीवी नरसिम्हा राव जी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते, तो मुझे वो याद है. वो तस्वीरें मैं बहुत खोज रही हूँ, वो भी मिल जाए. मदनलाल खुराना जी के सामने हम दोनों बैठी हैं, लेकिन अच्छा याद रहा. और हम लोगों ने 1 साल बहुत कम होता है, पर रेखा को मैंने देखा कि उसने एक निरंतर ईमानदारी से प्रयास वो करती रही, और उसी का नतीजा. ये बड़ी बात है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो लोग रहे उनके लिए भी होगा कि अच्छे से यहाँ पे पॉलिटिक्स करो. कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आगे चल के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं. नहीं, बिल्कुल. देखिए, रेखा जी के शपथ लेने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके हौसले जो हैं वो एक लेवल और आगे जाएंगे. इससे पहले अजय माकन जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के रहे. वो स्पीकर रहे, यंगेस्ट स्पीकर दिल्ली विधानसभा, मिनिस्टर. सो इंस्पिरेशंस रहा, इंस्पायर हुए कि राजनीति में अगर आना है तो आपने उस टाइम पे क्या देखा डूसू के टाइम पे
जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा जब दर्शक ये सोचें कि भाई हमारी नई चीफ मिनिस्टर कैसी है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, रेखा जी के लिए उस समय मेरे साथ जब वो थी, विमेन सेफ्टी इन द कैंपस, और वही आज भी है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, और ये उम्मीद एक महिला मुख्यमंत्री से की जाती है। सो वो इशू भी रहा। माँ की बात होती है, माँ यमुना, डेफिनेटली एक महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि माँ यमुना स्वच्छ होगी, बेटियों के लिए दिल्ली सुरक्षित होगी। इन सब चीजों पर है। कुल हमारा, मेरी शुभकामनाएं रेखा के साथ है, और मुझे यकीन है रेखा कर सकती है अगर उसको करने दिया जाएगा तो, और वो कर सकती है। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा सपोर्ट है रेखा के अब तो साथ। सारे एक ही साइड पे ना, रोकेगा कौन? एलजी नहीं रोकेंगे, होम मिनिस्ट्री नहीं रोकेंगे, अब तो सब मिले हुए हैं जी, क्वाइट लिटरली। देखिए, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, यमुना भी साफ हो जाएगी, बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, महंगाई को लेकर जो था कि 2500 रुपया और ये वो सब होगा, ये हम भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा अभी एक तस्वीर वीडियो पे, रेखा जी परवेश वर्मा जी को मिठाई खिला रही है, और वो उनके हाथ से मिठाई नहीं खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परवेश वर्मा जी का जो चेहरा आज उतरा हुआ लग रहा है जब वो जीते थे, और मुख्यमंत्री का, तो वो सब चीजें मुझे लगता है रेखा को सामना करनी पड़ी। विजेंद्र गुप्ता जी लीडर ऑपोजिशन रहे, लंबा उनका है, अब वो उनकी कैबिनेट में आएंगे तो कैसा रहेगा, ये सब चीजें देखिए रहेगा, चैलेंज रहेगा, आसान नहीं रहेगा। विद इन अ 90% आपने कांग्रेचुलेट किया, 10% आप लड़ाई कराने में लग गई, बट दैट्स द नेचर ऑफ लड़ाई देख ऑपोजिशन रही हूँ, पॉलिटिक्स। राजनीति में 30 साल से हूँ, मैं देख रही हूँ। अब बीजेपी में महिला, अब देखिए पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, 16 राज्यों में बताते हैं सरकारें, पर एक महिला मुख्यमंत्री नहीं है। सो अब मुझे खुशी है कि बीजेपी ने सोचा कि एक राज्य में तो महिला मुख्यमंत्री देना है, लेकिन फर्स्ट टाइमर एमएलए पहली बार विधानसभा में जाएंगी, और वो भी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठेंगी। सो चैलेंजेस रहेंगे, एक्सपीरियंस, अनुभव, विधानसभा, ये सब चीज उनको शायद लगता है थोड़ा समय लगे, पर सीख जाएंगी, ये मुझे लगता है। अलका लांबा